ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ منشیات کے استعمال کا تشویشناک رجحان، نئی نسل کو بچانے کے لیے سماج کے ہر ایک فرد کو اپنا رول نبھانا پڑے گا، عمر عبداللہ کا بیان۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے منگل کو سری نگر میں نظر بند حریت رہنما ایاز اکبر کی جائیداد ضبط کر لی۔ این آئی اے نے غیر منقولہ جائیداد پر اٹیچمنٹ کا نوٹس کیا چسپاں۔ کشتواڑ محکمہ میونسپل کونسل غفلت شعاری کا شکار۔ کشتواڑ شہر میں شہر کی سڑکیں اور گلیاں کوچے بارشوں سے زیر آب، مقامی لوگوں نے کیا ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے منگل کو سری نگر کے علاقے شیلٹنگ میں نظر بند حریت رہنما ایاز اکبر کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ این آئی اے نے غیر منقولہ جائیداد پر اٹیچمنٹ کا نوٹس چسپاں کیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ غیر منقولہ جائیداد یعنی موضع شیلٹنگ تحصیل سری نگر جموں کشمیر سروے نمبر 31 کے تحت 1 کینال اور 10 مربع اراضی محمد اکبر کھانڈے پٹیالہ ہاؤس کوٹس کے نام پر ہیں۔ نئی دہلی۔ محمد اکبر کھانڈے ایاز کے والد ہیں، جو اس وقت نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں گزشتہ 6 سال سے نظر بند ہے۔ ایاز اکبر کی اہلیہ رواں برس اپریل میں ایک کینسر سے جنگ ہارنے کے بعد انتقال کر گئی تھی۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے کہا کہ منشیات ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے، جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سی این آئی کے مطابق نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج صوبہ کشمیر کی مجلس عاملہ کے ایک غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہم زندگی میں جو کچھ کماتے اور تعمیر کرتے ہیں ہم اسے اپنی نئی نسل کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو منشیات جیسے لعنت سے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو پھر ہماری محنت و مشقت کس کام کے لیے ہے؟ رہا ہے کہ جموں کشمیر میں ایک بھیانک مسئلہ ہے، وہ ہے ڈرگ ایڈکشن کا۔ یہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ایک سوشل ایشو ہے۔ اس سے جموں کشمیر کے فیوچر کو جو ہے بہت ہی زیادہ خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت تس سے مس نہیں، لیکن اس بہت بڑے مسئلے پہ حکومت کے طرف سے ایک بھی ذکر نہیں۔ حالانکہ ڈرگ ایڈکشن کے وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے، مرڈرز ہو رہے ہیں، اور اس میٹنگ کو بلانے کے 2 مقصد تھے۔ ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس ایشو کو اور زیادہ سنجیدگی سے لیں، اور دوسرا ہم اپنے طرف سے ایک روڈ میپ تیار کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نظریے میں اس مسئلے کو کس طرح سے نپٹایا جا سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے فینس میں کوئی کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا جو اینٹی انفلٹریشن گرڈ ہے اس میں کمزوری ہے، کیونکہ یہ ڈرگز تو آ رہے ہیں، اگر پنجاب کے تھرو آ رہے ہیں تو یہ پنجاب اور جموں کشمیر کے بارڈر پہ کیوں نہیں روکے جا رہے ہیں، اور اگر ایل او سی کے تھرو آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ میں بلیم گیم میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈرگز آ رہے ہیں تو ہمارے ہی لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا استعمال بند ہو جائے، یہاں لوگ استعمال کرنا بند کریں۔ عمر صاحب، 23 جون کو جو یونٹی میٹ ہو رہی ہے بہار میں، جب باروں سے پتہ چلا کہ وہاں پر جاری ہے، کیا وہاں پر سپورٹ دیا جا رہا ہے؟ ہم جا رہے ہیں، بیٹھیں گے وہاں پہ، سنیں گے۔ میں نے جیسے جموں میں رجوری میں نے پچھلے دنوں کہا، ہمارا رول اس میں بہت ہی کم ہے،
कुल मिला के अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटें जीतें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल गनी वकील ने आज एक प्रेस बयान में कहा कि रफ़ियाबाद और उसके गिरदोनवा इलाकों में ज़ालाबारी से किसानों और फ्रूट ग्रोवर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है और सरकार को चाहिए कि जल्द अज जल्द एक पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो जाए। बार बार कहा कि भी सरकार को वहाँ टीम भेजनी चाहिए, हमने मुतालबा किया, लेकिन सरकार जब भी टीम भेजती है, आज तक ये तो मेरे ख्याल में 10वीं बार इलाका रफ़ियाबाद और दूसरे एरियाज़ में भी सालबारी हुई, लेकिन सालबारी से जो मुतस्सरीन है आज तक सरकार ने उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया, कोई मदद नहीं की। हालांकि ज़रूरत इस बात की कि राशन फ्री देना, हालांकि पहले जो आज लोग हाहाकार कर रहे हैं आम लोग भी, क्योंकि राशन जो घाट है वो खाली है, क्योंकि जिस तरीके से राशन लोगों को मिलनी चाहिए, जो पहले मुफ्त राशन देते थे, कुछ उन्होंने। कारवान अदब DA गांदरबल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल के ताउन से गांदरबल में सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। पहले सेशन में काफ़िले के बानी अरकान को एजाज़ दिया गया। इस सिलसिले में मरहूम सैयद कल्बी हुसैन, मरहूम सैयद सजातुल सीरत और मरहूम सैयद अहमद बदर के अलावा सैयद मोहम्मद मरूफ और मुहिद्दीन शहलजारी को अवार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत परवेज़ शेख एजाज ने की, जबकि फौजिया फ़ातिमा प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज और सदर अदबी मरकज़ का इस मौके पर मेहमान कारवान अदब खुसूसी थे। सैयद अख्तर मंसूर ने इफ्तिताही तकरीब की, जिसके बाद वादी भर के मशहूर शायरों की शायरी का इजलास हुआ। शुरका में सैयद अब्बास जौहर, मुहिद्दीन शंगजारी, ग़ुलाम हुसैन, हक़न नवाज़, सुब्बैक अली सुब्बैक और दीगर मुमताज़ शायर और मुसन्निफ़ीन शामिल थे। डिग्री कॉलेज गांदरबल में एक नहायत ही अहम अदबी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसका इनेकाद कारवान अदब डब गांदरबल ने किया था, जो अदबी मरकज़ कमराज की एक नहायत ही मुतहर्रिक इकाई है। इसमें यहाँ हमारे तालिब इल्मों ने और मकामी शोराए किराम के अलावा दीगर इलाक़ों से आए हुए शोरा ने भी शिरकत की। बुनियादी तौर मकसद तालीमी इदारों में इस किस्म के प्रोग्राम करने का ये है कि हमारी जो नई नस्ल है वो अपनी तहज़ीबी विरसे के साथ अपने अखलाकियात जो हमारी तहज़ीब का हिस्सा हैं, हमारी जो रोशन अक़दार रही हैं, उनके साथ हम आहंग हों और उनमें अगर किसी किस्म की अदबी सलाहियत है, जो उनसे आगे हैं इस फील्ड में, कोहना मशक लोग हैं, जब वो अपने फ़न का मुज़ाहिरा कलाम की सूरत में किसी मजलिस में करते हैं जहाँ हमारे नौनिहालों को भी सुनने का मौका मिलता है, उससे एक तहरीक उनको मिलती है और वो भी अपने इजहार के लिए रास्ते ढूंढते हैं। हमें उम्मीद। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर और उसके गिरदोनवा इलाकों में बिजली की कटौती की वजह से लोग परेशान हैं। इस ज़िम्न में सियासी कारकुनों ने इस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बिजली की अशद ज़रूरत है और हम सरकार और LG इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि बिजली फराहम की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। हमारा सीज़न चल रहा है यहाँ पे कश्मीर का, वो जो है हमारे फार्मिंग का, जैसे आप शाली लीजिए या हॉर्टिकल्चर की तरफ ध्यान दीजिए, सेब हो गए, चिरी हो गए, मगर इसमें हमें एक चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो चीज़ हमें अवेलेबल इस टाइम नहीं हो पा रहा है, वो है कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम देख लीजिए जो नीचे इलाके हैं हमारे सोपोर साइड के, संग्रामा या नीचे जो भी है, तो उनको इस इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत है। फर्ज भाई है, उनको जो पंप लगे रहते हैं, पंप शेड जो होते हैं, उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और उनको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम। मुझे लगता है कि इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन या LG हुकूमत को इस पर ध्यान देना। हमारी इंडस्ट्री आज की डेट में बंद पड़ी हुई है, 30 दिन का कट मिलता है हमें आज की डेट में इंडस्ट्री को। अच्छा, 4-4, 5-5 घंटे का कट मिलता है सिविल में। मुझे बताइए, देख लीजिए आज सरकार अगरचे आबी ज़खायर को बचाने के लिए संजीदा नज़र आ रही है, ताहम महकमे दही तरक्की की मुदाखलत की वजह से आबी ज़खायर ख़त्म ही होने लगे हैं।
محکمہ دہی ترقی نے ضلع پلوامہ کے راجپورہ علاقے میں قدرتی چشمے پر تعمیراتی کام کرنے سے اس چشمے کی خوبصورتی بری طرح سے متاثر کر دی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس سے پہلے چشمے میں پانی کا بہاؤ کافی تیز ہوا کرتا تھا، لیکن محکمہ دہی ترقی نے چشمے پر تعمیرات کھڑی کرنے کے بعد چشمے میں پانی کا بہاؤ کافی کم ہونے کے ساتھ ہی اس کی خوبصورتی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ مقامی آبادی کے مطابق محکمہ دہی ترقی کے اس کام کی وجہ سے چشمہ آب کوڑے دان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس ضمن میں مقامی لوگوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ شادی مبارک بلاک نے راجپورہ علاقے میں اس چشمے کو بچانے کے لیے کام کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں سیمنٹ کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے یہ چشمے کا پانی ہی بند ہو گیا اور اس کی خوبصورت کو بھی مسخ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل چشمے میں کافی پانی آتا تھا اور مقامی آبادی اس کو پینے کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں میں استعمال کرتی تھی، لیکن ان کی جانب سے اس پر تعمیر کام کیا گیا، جس کی وجہ سے پانی بھی کم ہوا، ساتھ ہی اب یہ ناقابل استعمال ہو گیا ہے۔ اس کو نئے سرے سے جو بلاک ڈیولپمنٹ آفس شادی مرنگ نے جو کام کیا ہے، لوگوں کے کہنے کے مطابق جو اس کی پرانی شیپ تھی وہ مسخ ہو گئی۔ مسخ ان دی سینس کہ یہ پانی نہ اب یوٹیلائز ہو رہا ہے، نہ اس میں جو سارا جو درختوں کا جو پتے ہیں وہ بھی اس میں جمع ہوتے ہیں، جو سارا کوڑا کرکٹ ہے وہ اس میں جمع ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے جو ہمارے پردھان منتری کا جو منشور ہے کہ واٹر ریسورسز کو محفوظ کیا جائے اور جو صاف جہاں سے صاف پانی وہ لوگوں کے استعمال کے لیے استعمال کیا جائے، تو میری یہ گزارش ہے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر سے، شادی مرگ سے، کہ وہ خود معائنہ اگر، چونکہ جب یہاں انجینئر صاحب آتے ہیں پہلے، وہ کیوں نہیں معائنہ کرتے کہ یہ جو پانی جو واٹر ریسورسز اصلی خدا کا دین تھا، خدا قدرت کا نشانہ تھا، تو اس کو کیوں نہیں وہ اچھے طریقے سے سنبھال جو 139 عازمین حج کے قافلے کو آج ضلع انتظامیہ اور مقامی لوگوں نے گرم جوشی سے رخصت کیا۔ اس بیچ میں ضلع بھر سے 87 مرد اور 52 خواتین عازمین شامل ہیں۔ ڈاک بنگلو ڈوڈا سے اس بیچ کو ڈپٹی کمشنر ڈوڈا وشیش پال مہاجن نے، ایس ایس پی ڈوڈا عبدالقیوم، صدر ایم سی ڈوڈا ویدیہ پرکاش گپتا، اے سی ڈی پنچایت ڈوڈا اشفاق خان جی، نوڈل آفیسر جی ایم ڈی آئی سی ڈوڈا اور ایس لون اور دیگر افسران کے ساتھ ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ڈی سی نے ایس ایس پی اور دیگر کے ساتھ حاجیوں سے بات چیت کی اور ان کے محفوظ سفر کی خواہش کی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے حج کمیٹی نے سن 2023 کے لیے ضلع ڈوڈا سے کل 166 عازمین حج کا انتخاب کیا تھا، جن میں سے چند عازمین قبل عظیم مقدس شہر مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور 7 عازمین 22 تاریخ کو روانہ ہوں گے۔ 139 عازمین کا قافلہ سری نگر حج ہاؤس کے لیے روانہ ہوا، جہاں سے وہ کل جدہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ ضلع انتظامیہ نے عازمین کی سہولت کے لیے تمام تر انتظامات کیے ہیں اور نوڈل آفیسر اے سی ڈی پنچایت ڈوڈا کی نگرانی میں ایک سرشار کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے تاکہ حاجی اور ان کے اہل خانہ سے کال کی جا سکے۔ ان کی جو پریئرز ہیں اور ان کی جو پلگرمیج ہے وہ قبول ہو اور یہ وہاں پہ جائیں آرام سے، جو بھی اپنی حج کی ان کی جو ایکسرسائز ہے وہ کریں اور خوشی خوشی واپس آئیں۔ ہماری ان کے ساتھ دعائیں ہیں اور کشمیر میں بھی ہمارے افسران جو ہیں انہوں نے ٹائی اپ رکھا ہے اور امید کرتے ہیں they'll have a great حج کل رہیں گے۔ وہیں سے کل ان کی امبارکمنٹ فار دی ایئرپورٹ اور فارورڈ جرنی ہوگی۔ اس مسئلے میں ڈویژنل کمشنر کشمیر نے لگ بھگ 1 ماہ پہلے میٹنگ بھی کی تھی جس میں ڈائریکشنز دی گئی تھی۔ ہم نے یہاں پہ کنٹرول روم 24/7 آپ جانتے ہیں چلتا ہی ہے۔ ہم نے ان کو کہا تھا کہ حاجیوں کو یہ بتائیے اگر کسی کو بھی کوئی پریشانی آتی ہے اور کوئی ویکتی سے بات نہیں ہو پاتی ہے تو وہ یہاں پہ کنٹرول روم میں یا اشفاق صاحب سے بات کریں۔ وی ول ٹرائی ٹو سارٹ آؤٹ اینڈ کوآرڈینیٹ ایٹ آل لیولز ان کیس دیر از اے پرابلم۔ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ شور آفاق سیاحتی مقام پہلگام کے سرکٹ روڈ پر سٹریٹ لائٹس ناکارہ ہو چکی ہیں، جبکہ سڑک کی خستہ حالی سے ہوٹل مالکان، ٹورسٹ اور مقامی باشندے پریشان ہو چکے ہیں۔ اس تعلق سے اگرچہ انتظامیہ کی نوٹس میں ان معاملات کو لایا گیا، لیکن بدقسمتی سے یقین دہانیوں کے سوا آج تک کچھ نہیں کیا گیا۔ ادھر مقامی لوگوں نے پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو افسر سے اپیل کی کہ سرکٹ روڈ کی خستہ حال سڑک اور سٹریٹ لائٹس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ سیاحوں کو مزید آنے جانے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ وہیں اس حوالے سے چیف ایگزیکٹو افسر پی ڈی اے طارق احمد نے نمائندوں کو یقین دلایا کہ چند روز کے اندر ہی ان کا مشکلات کا ازالہ کیا جائے گا۔ بیسیکلی ہمارے گیسٹ جو ہے یہاں اسٹے کرتے ہیں، وی ہیو سم ہوٹلس، گڈ ہوٹلس فرام دس سائڈ۔ بیسیکلی وہ اتنی کمپلینس کر رہے ہیں کہ روڈ اتنا گندا ہے، وی ہیو ویہیکلس
जो स्टक हो जाते हैं, स्पेशली इन बैक साइड ऑफ माई, इस मैटर को प्लीज सीरियसली लें। ये इधर हालत बहुत खराब है, स्पेशली दिस रोड। तो ये मेन रोड तो साफ करते हैं, इट विल नॉट टेक देम टू मच कॉस्ट, इसका कॉस्ट उतना नहीं लगेगा इनको। एटलीस्ट ये थोड़े से पत्थर डाल के इसमें जेसीबी चलाए या इंजन चलाए, जिससे थोड़ा सा एटलीस्ट राहत मिल जाए। एंड आई रिक्वेस्ट डीसी साहब, एलजी साहब, प्लीज अगर डीसी साहब महीने में 1-2 ट्रिप इधर पहलगाम करते, जस्ट इंस्पेक्शन करेंगे, तो मुझे लगता है कि सब मैनेजमेंट थोड़ा होश में आ जाएगी। अदरवाइज ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। नोबडी इज बॉदर टू रिपेयर दिस रोड। पिछले 5-6 सालों से ये जो रोड यहाँ पे है डैमेज है, इसके बारे में हम बहुत सारे लोग गए थे COPD साहब के पास, हर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर में थे। अगर वो चाहे इसको ठीक करे और लाइटें लगाए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट होता है। अक्सर डेलीगेट्स आए और उन्होंने भी यही कहा कि वो एक स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, दूसरा कुछ रोड का है। तो रोड का जहाँ तक सवाल है, हम वो आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सईद हामिद साहब की उनके भी नोटिस में लाएंगे और R&B डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि चूंकि पहलगाम ऑलरेडी ब्लूम पे है, टूरिस्ट सीजन ऑलरेडी ब्लूम पे है, तो हम चाहेंगे कि ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आज भी कई कश्मीरी पंडित मुकीम हैं। टारगेट किलिंग के वाक़यात के बाद अगरचे पूरी पंडित बिरादरी खौफज़दा है, ताहम कश्मीर से लगाव और मोहब्बत आज भी उनके दिलों में कायम है और उनके जज्बात आज भी कश्मीरी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कश्मीर में 1989 से 1990 में जब भारत से अलहदगी के सियासी मुतालबे ने बाकायदा मुसल्लह मज़ाहमत की शक्ल इख्तियार की, तो कश्मीरी पंडितों ने तशद्दुद से बचने के लिए नक़ल मकानी शुरू कर दी थी। कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद अपना घर बार छोड़कर जम्मू और दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पनाह गुज़ीनों की हैसियत से रहने लगे। ताहम चंद हज़ार पंडितों ने वादी ही में रहने का फ़ैसला किया था, जो ताहाल अपने आबाई घरों में ही रह रहे हैं। कश्मीर में नामसाइद हालात के दरमियान भी लोगों के बाहमी रिश्तों में कोई फ़र्क नहीं आया है। आज भी कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के रिश्ते में मजहबी हम आहंगी और मोहब्बत देखने को मिलती है और वो एक दूसरे की खुशी व गम में शामिल होते रहते हैं। सदियों पुरानी रिवायत और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की एक और मिसाल सिरहामा इलाके में सामने आई है। कश्मीरी मुसलमानों ने हल्का इंतखाब बिजबहाड़ा के सिरमाहा इलाके में 2 कश्मीरी पंडित ख़वातीन की शादी की तकरीब में शिरकत की और भरपूर ताउन पेश भी किया। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके में प्राणनाथ भट्ट की 2 बेटियों की शादी थी और तकरीब में सैकड़ों कश्मीरी मुसलमान पड़ोसियों ने शिरकत की और तमाम कामों में भरपूर ताउन भी किया। कश्मीरी मुसलमानों ने पंडित लड़कियों की शादी की हर रस्म में शिरकत की और कश्मीर का रिवायती वन गाकर शादी को रौनकें बख्शीं। इस शादी में जम्मू से भी उनके कुछ रिश्तेदार आए थे। कश्मीरी पंडित ख़वातीन की शादी में एक बार फिर से आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। और दोनों दुल्हनों की रुखसती तक कश्मीरी मुस्लिम पंडितों के घर पर रहे, जिससे पुरानी रिवायत और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की एक मिसाल देखने को मिली है। इस दौरान प्राणनाथ भट्ट के भाई बंसीलाल भट्ट ने कहा कि यहाँ गुज़िश्ता 4 दिनों से तकरीब जारी थी और इन 4 दिनों में मुस्लिम पड़ोसी बशमूल मर्द ख़वातीन ने हर रस्म में हिस्सा लिया और भरपूर ताउन पेश किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान मर्द ख़वातीन ने रवादारी अच्छी निभाई, जिससे वो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सदियों से अपनी रीत रही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख हमेशा से मोहब्बत के साथ रहे हैं, जबकि 90 की दहाई में जो हालात रोनुमा हुए वो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान दोनों के लिए बदकिस्मती है। हम पिछले सैटरडे को 5 तारीख को यहाँ आ गए। हमारे भाई की शादी थी जिसका नाम प्राणनाथ भट्ट है, उसकी 2 लड़कियों की शादी थी, तो वो हमने खुश असलूबी से अंजाम दिया। तो हमारे जो यहाँ के आस पड़ोस लोग हैं, गाँव के लोग हैं, औरतें हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट हमें किया, जिससे हम बहुत खुश हो गए। तो मगर ये रवादारी जो होती है वो उन्होंने अच्छी निभाई।
तो इससे हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा, यहाँ बहुत माहौल अच्छा है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली अगर देखा जाए ये शादी उन्होंने अंजाम लाई, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। प्राणनाथ की बाबी के मुताबिक कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम दो भाइयों यानी राम और रहीम की तरह थे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ताकतों की वजह से दोनों भाइयों में खटास आ गई, जिसकी वजह से कई कश्मीरी पंडितों को नकल मकानी करना पड़ा। लेकिन उन्हें आज भी कश्मीर की याद आती है, जिसकी वजह से उनका दिल यहाँ पर ही रहने को चाहता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों ने शादी की हर तकरीब में शिरकत की, मेहंदी रात समेत दीगर रसूमात में हिस्सा लिया, इससे ये वाज़ेह पैगाम मिलता है कि वादी कश्मीर में मुसलमान और हिंदू अभी भी आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। सब कुछ ठीक ठाक लगा, मगर ये होता है ना, दो भाई राम रहीम यही हुआ है, तो हम एक जैसे सारे, मगर बीच में कुछ खटास आ गई, उस वजह से भागना पड़ा। तो नहीं तो हमारा घर मन नहीं करता हमको यहाँ से जाने का, कसम से, क्योंकि वहाँ का अलग हिसाब है, यहाँ का अलग है। तो बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक लगा। कल हमने देखा यहाँ सारे ये मुसलमान भाई बहनें आई, बेटियाँ आई, सब कुछ आई, मतलब अच्छा लगा। मकामी शख्स के मुताबिक वो मोहल्ले में एक साथ रहते आए हैं और हिंदू पड़ोसी की शादी की तकरीब में शिरकत करना उनका फ़र्ज़ था, जबकि शादी में तकरीबन सैकड़ों की तादाद में मुसलमान शरीक रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ये सदियों पुराना रिश्ता है और इसे शरारती अनासिर नहीं तोड़ सकते। उसकी दो बेटी की शादी थी, इसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की, मुसलमानों ने। 2 दिन तक वो यहाँ ही रहे, फिर जहाँ जो मेहमान आए थे उनका भी खातिरदारी की और कल शाम वो रुखसत हो गए। अब पुराने ज़माने में यहाँ होता है उसी तरह, यहाँ कोई फ़र्क नहीं आया उसमें। हाँ, यहाँ के लोग जो बाहर गए थे वो भी कल आए थे यहाँ, उनसे भी गले मिले, उनको भी प्यार दिया, उन्होंने भी हमें प्यार दिया। अब वो हमको जानते नहीं हैं, चेंज हो गई है। दोनों कमेटी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि हम एक साथ रह रहे हैं और हम ऐसा करते रहेंगे और हर छोटे बड़े मौके पर एक दूसरे की हिमायत और मोहब्बत करेंगे। उन्होंने कहा कि आज भी पुराने ज़माने की तरह वो आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि शादी में मुस्लिम ख़वातीन दुल्हा का इस्तेमाल करती हुई नज़र आ रही थीं और शादी की तकरीब के दौरान पंडित खातून के साथ गाने और रक़्स में भी हिस्सा ले रही थीं। वहीं उसने हिंदू कम्युनिटी को पैगाम दिया कि अगर वो कश्मीर वारिद होंगे तो हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से गजाला निसार की रिपोर्ट। अभी आसमान से पूरी तरह से बादल बरसे ही नहीं थे कि किश्तवाड़ शहर समेत गली कूचों में पानी भर गया। यहाँ तक कि नालियों से गंदगी सड़कों पर फैल गई। दरअसल ये नालियों की गंदगी निकासी न होने की वजह से इस सड़कों पर गंदगी के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। ज़राए का कहना है कि इस मुश्किल सूरत हाल की ज़िम्मेदारी म्यूनसिपल काउंसिल किश्तवाड़ पर आयद है, जो नालियों की निकासी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मकामी लोगों के मुताबिक किश्तवाड़ में तामीर और तरक्की के वादों के बावजूद ज़िले के कई हिस्सों में गलियों की खस्ता हालत ही नहीं बल्कि सड़कों की हालत भी खस्ता बनी हुई है। ज़िला किश्तवाड़ में नल बिछाने और सीवरेज निज़ाम लाने के नाम पर शहर के अक्सर हिस्सों में गलियों और सड़कों को मुख्तलिफ मकामात पर उखाड़ा गया, लेकिन नल के कई महीने गुजरने के बावजूद इन उखाड़ी गई सड़कों और गलियों की मरम्मत नहीं कराई गई है। बहुत जल्दी काम चलने वाला था। 2 महीने से यहाँ कब्रिस्तान से ग्रीन मॉडल के नीचे वहाँ पार्क तक ड्रेन नहीं बनी। ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है उस ठेकेदार को? यहाँ हमारे घर में चलिए, आप देखिए वहाँ पर, आप वीडियो कैमरे से आप उसको शूट कीजिए, पूरा मंजर आपके सामने आएगा, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ के हालात क्या है और हम क्यों मजबूर हो गए इस वक्त सड़कों पे आने के लिए। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में मंगल की सपहर 5.4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।
यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में अगरचे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम चनाब खित्ते के डोडा और किश्तवाड़ ज़िला में ज़लज़ले के झटकों से लोग घरों से बाहर निकल आए। स्कूलों की क्लासेज रोज़मर्रा से तलबा को बाहर निकाला गया। ज़लज़ले के झटके दोपहर 1:33 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई, ताहम ज़लज़ले के बाइस किसी जानी नुकसान की अब तक कोई इत्तला नहीं है। हुक्काम ने बताया कि ज़लज़ले का मरकज़ डोडा ज़िले के भलीसा से 18 किलोमीटर दूर ज़मीन से 7 किलोमीटर नीचे था। डीसी डोडा ने कहा कि तमाम एसडीएम तहसीलदारों को अलर्ट कर दिया गया है और तमाम इलाकों से मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। डीसी डोडा ने ज़लज़ले के फौरी बाद मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। भूकंप तो सर बहुत खतरनाक आया। यहाँ डर का माहौल हो चुका था कि पूरी बिल्डिंगें हिल रही थी, लोग बाहर निकल गए थे, बच्चों को स्कूल से छुट्टी कर दी गई, सब अफरा तफरी का माहौल हो गया कि अचानक से क्या हुआ। काफ़ी तेज़ इसकी तीव्रता थी, तो सर काफ़ी डर का माहौल हो चुका था। हाँ, हम भी देखा हमने कि बच्चे भी स्कूल से घरों की तरफ जा रहे हैं, उनके स्कूल टाइमिंग से पहले छुट्टी हो गई ताकि कोई ऐसी घटना ना घट जाए, इसलिए उनको भी जल्दी छुट्टी। जी, मेरा नाम जगमीत मनास है, इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ, प्रिंसिपल हूँ। आज का झटका हुआ वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था, बहुत भयानक था। इसमें 5.1 मैग्नीट्यूड बताया जाता है। डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में आज ज़िले सतह यूएस इंडिया के तहत आज ज़िले कुपवाड़ा के नौजवानों की सलाहियतों को ज़ाहिर करने और उनकी परवरिश के लिए उनकी सलाहियतों को मुस्फर और नतीजा खेज़ कामों की तरफ मोड़ना है। इस सिलसिले में आज डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आज़ादी का अमृत महोत्सव युवा शक्ति से जान भागीदारी के जज्बे से मनाना था। कुपवाड़ा के मुख्तलिफ कॉलेजों और हाई सेकेंडरी स्कूलों के 15 से 29 साल की उम्र के 260 से ज़्यादा नौजवानों ने इन 5 मुकाबलों में हिस्सा लिया। बानिहाल में आज योगा डे के दिन प्रिंसिपल मॉडल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बानिहाल की मुतहरिक क़यादत में हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बानिहाल में योगा डे मनाया गया, जिसमें महकमे समाजी बहबूद और आयुष्मान भारत एनसीसी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बानिहाल ने भी शिरकत की। यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की डिपार्टमेंट की रहनुमाई में तलबा ने योगा किया। पूरा प्रोग्राम एसडीएम और तहसीलदार बानिहाल की निगरानी में मुनक्किद किया गया, जैसा कि काबिल ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन की ख्वाहिश थी। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।